Assalamu alaikum. Hello and welcome back to the channel. Dear students, hope you all are doing good and you all are absolutely fine. In the previous videos, we discussed about the important flow chart and some of the terms that will help you in the upcoming lectures. So the previous videos were very important for your upcoming lectures, and today this is one of the important lecture for your reproductive system. In this video we'll be going to discuss the core part of this very topic as well. So dear students, let us start without wasting our much time. So we will revise the terms and the topics which we have earlier studied, learned, so that we can connect this lecture with the previous one as well. So this is the third lecture of this very chapter, and what we studied in the earlier class, let's revise first. We have the male reproductive system. In the male reproductive system, we have two important organs, that is the primary sex organ, and we have the secondary sex organ. We have defined the primary sex organ as these are those organs which can produce the gametes, and in males we have the testes which produce gametes. ठीक है ना, इतना आपको समझ में आया? These testes will form the sperm as well as they will secrete the testosterone. Testosterone is a male hormone. This is the androgen hormone. ठीक है? This is the steroid hormone that was from the primary sex organ. अब हम बात करेंगे secondary sex organs में. हमारे पास इसमें तो एक हमारे पास we have the duct system. We have a duct system. Duct system में हमारे पास क्या क्या आएगा? Duct system में हमारे पास we have सबसे पहले we have reta testes. ये आपको याद रखना है. We have reta testes. Then we have vasa. We have vasa afferentia. We have epididymis. And then we have vasa deferentia. Then we have the male urethra, or the last opening in the male urethra. That is the urinogenital tract. Now we have the gland system. Gland system का क्या role होता है? We have the glands in the male reproductive system. यहाँ पर आपको मैं एक mnemonics दूंगा जिसकी मदद से आप ये वाले याद रख सकते हो. ग्लैंड्स कैसे? PSC आप याद रखो. P से हमारे पास आएगा prostate gland. Prostate gland is acidic, याद रखिएगा. एंड ये जो prostate gland होता है, this is not in pairs. ठीक है? ये वाला paired नहीं होता है. This is the unpaired. याद रखिएगा, आपके नीट वाले एग्जाम में, आपके बोर्ड वाले एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे. अब हमारे पास S वाला आएगा, that is seminal vesicle, and seminal fluid is secreted by this seminal vesicle. इसमें fructose भी होता है, and this is the paired one. याद रखना है आपको. Then last पे we have the Cowper's gland. और यहाँ पर और एक चीज आप याद रखोगे, Cowper's gland is also paired. ठीक है? lubrication के काम आता है. और Cowper's gland it's also called as bulbourethral gland. Cowper's gland, यहाँ पर मैं ये लिखूंगा Cowper's gland it's also called as bulbourethral gland. ये आप अपनी कॉपीज पर लिखो, बिकॉज यही तो आपको आगे जाके पढ़ना है. हमें एनाटॉमी ऑफ टेस्टिस पढ़ने हैं, ठीक है, हमें ये वाला सिस्टम पढ़ना है,
एंड एट द एंड वी हैव टू डील विद द ग्लैंड्स। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे आपका जो पहला पार्ट है, दैट इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। नाउ वी हैव एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपको समझना है, बहुत जरूरी। ठीक है, सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपके एनसीईआरटी का पार्ट है, आपके एनसीईआरटी में लिखा है, दैट इज, ये आपका स्टार पॉइंट है, बट ये है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द कैविटी। ठीक है, किस कैविटी में है आपके पास? वी हैव द पेल्विक कैविटी, वी हैव द पेक्टोरल कैविटी। ठीक है, पढ़ा है ना, क्लास 11th में आपने ये सब पढ़ना चाहिए था। ठीक है, देखो पेल्विक कैविटी होती है, ये जो विंग्स वाला एरिया होता है इसे हम कहते हैं पेक्टोरल कैविटी, और पेल्विक कैविटी होती है जो एब्डोमिनल कैविटी के नीचे होती है। सो वी हैव द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड इट इज प्रेजेंट इन द पेल्विक कैविटी। याद आपको ये रखना है, पेल्विक कैविटी। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट द पेल्विक कैविटी। ये मुझे आपको बहुत ही जरूरी बताना था। अब देखो, आपके लिए एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहां पर। if this is the pelvic cavity, sorry, this is the abdominal cavity, this is the abdominal cavity, याद रखो, this is the abdominal cavity, thoracic cavity के नीचे होता है। ठीक है, so up to the 7th month, यहां पर आपको एक चीज याद रखना है, up to the 7th month एक जो बेबी होता है इसके पास जो टेस्टिस होते हैं वो एब्डोमिनल कैविटी में होते हैं, याद आपको रखना है। ठीक है ना, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, क्वेश्चन रेज होना चाहिए, अरे भाई ऐसा क्या हुआ कि अब 7th मंथ के बाद ये जो टेस्टिस है इन्हें एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी में जाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं आपको ऐसे समझाऊंगा, वी हैव हियर द scrotum, we have here the extra abdominal part, that is the scrotum. ठीक है, this is the extra abdominal part, याद रखो, extra abdominal part, and this is the scrotum or the scrotal sac। अब देखो, मुझे आपसे क्वेश्चन पूछना है कि आप मुझे बताओ, these testes were present up to the 7th month into the abdominal cavity। ऐसा क्या हुआ कि इन टेस्टिस को अब हमें एक्स्ट्रा एब्डोमिनल पार्ट में ले जाना है। ठीक है, पेल्विक कैविटी में ले जाना है। ऐसा क्या हुआ कि ये जो टेस्टिस है अब इन्हें यहां पर आना है। ठीक है, ये मुझे आपको बताना है। देखो 7th मंथ के बाद ऐसा होता है, ये जो टेस्टिस होते हैं, दीज आर द टेस्टिस, ये जो टेस्टिस होते हैं दे विल सिक्रीट द टेस्टोस्टेरोन। अब ये क्या करेंगे, ये सिक्रीट करेंगे एक हार्मोन जो मैंने आपको बताया पहले ही, दैट इज द टेस्टोस्टेरोन। और टेस्टोस्टेरोन क्या करेगा, this will help in the spermatogenesis। what is spermatogenesis? Spermatogenesis is the formation of the sperm। ठीक है, तो आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा, क्या ये यहां पर स्पर्मेटोजेनेसिस कर पाएगा? ठीक है, तो अगर कर पाएगा फिर इसे इस वाले एक्स्ट्रा एब्डोमिनल पार्ट स्क्रोटम में आने की क्या जरूरत है? ठीक है ना, तो इसका आंसर ये है माय डियर स्टूडेंट, इसका आंसर ये है कि ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस होती है इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। ठीक है, इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। यहां पर हमारा बॉडी टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, लेकिन हमेशा आप याद रखोगे स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए हमेशा बॉडी टेम्परेचर के 1 या 2 डिग्री सेल्सियस लेस होता है टेम्परेचर। दैट मीन्स स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए वी हैव 34 to 35 डिग्री सेल्सियस for the spermatogenesis. This temperature will be 34 to 35 डिग्री सेल्सियस। और इसी टेम्परेचर को कम करने के लिए हमें इस टेस्टिस को into the extra abdominal part में लाना पड़ता
है, ठीक है। तो ऐसा क्या होता है, देखो यहां पर आपको मैं और एक इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जाम इज वेल। वो ये है कि इफ दीज टेस्टिस विल नॉट डिसेंड डाउन इनटू द सक्रोटम, अगर ये टेस्टिस सक्रोटम में नहीं आएंगे, इफ दीज टेस्टिस will not descend down where into the scrotum, so this is a disease and it is called as cryptorchidism. This is a disease and it is called as cryptorchidism. Orchidism. So if these testes will not descend down into the scrotum, अगर ये टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी में ही रहेंगे तो इस डिजीज को हम कहेंगे क्रिप्टोऑर्किडिज्म। दिस इज द स्टार पॉइंट फॉर योर नीट एग्जाम। तो इससे क्या होगा माय डियर, इससे ये होगा कि टेम्परेचर ज्यादा होगा एंड टेस्टिस विल फील हाइपरथर्मिया हो जाएगा, हाइपरथर्मिया। और हाइपरथर्मिया की वजह से वी हैव अ कंडीशन दैट इज कॉल्ड एज अ मेल कैन बी इनफर्टाइल, जिसकी वजह से एक मेल बच्चा पैदा नहीं कर सकता। दैट इज वाई दीज टेस्टिस आर डिसेंड डाउन इनटू द स्क्रोटम। अब समझ में आ रही है ना आपको बात कि ऐसा क्यों है कि इन टेस्टिस को एक्स्ट्रा एब्डोमिनल पार्ट में आना जरूरी है। अगर नहीं आया तो टेम्परेचर ज्यादा होगा, टेस्टिस विल फील हाइपरथर्मिया से क्या होगा, testes will not form the sperm, spermatogenesis नहीं होगी। समझ में आ रही है आपको बात, ठीक है ना। सो अब ये जो टेस्टिस है इन्हें कहां से हम नीचे आने में हेल्प करेंगे, इनको हम यहां से यहां तक कैसे लाएंगे। वी हैव अ कैनाल दैट इज कॉल्ड एज इंग्विनल कैनाल। सो हियर इज अ कैनाल, दिस कैनाल इज कॉल्ड एज इंग्विनल कैनाल। याद रखिएगा, दिस कैनाल इज कॉल्ड एज इंग्विनल कैनाल। सो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, the testes pass through which canal from the abdominal cavity into the scrotum, and the clear answer is the inguinal canal। समझ में आ रही है ना आपको बात। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, देखो रिवाइज करेंगे थोड़ा बहुत। सबसे पहले हमने ये पढ़ा, these testes are into the abdominal cavity up to the 7th month। तो वहां से क्या होता है, ऐसा क्या हुआ कि इस टेस्टिस को हमें एक्स्ट्रा एब्डोमिनल पार्ट में ले जाना है। ऐसा हमें क्यों करना है, इसलिए करना है बिकॉज अगर हमें स्पर्मेटोजेनेसिस करनी है, स्पर्म फॉर्मेशन करना है, उसके लिए हमारा ऑप्टिमम जो टेम्परेचर होता है दैट विल बी बिलो द बॉडी टेम्परेचर, दैट इज अप टू 34 to 35 डिग्री सेल्सियस। और अगर यहां पर ये टेस्टिस रहेंगे, दिस कंडीशन is called as the cryptorchidism। इससे इनफर्टिलिटी क्यों होगी, बिकॉज द टेस्टिस विल फील द हाइपरथर्मिया, और हाइपरथर्मिया की वजह से द स्पर्मेटोजेनेसिस विल नॉट टेक प्लेस। समझ में आ रही है आपको बात। अब टेस्टिस को हमने नीचे लाना है बाय द हेल्प ऑफ अ कैनाल दैट इज कॉल्ड एज इंग्विनल कैनाल। यहां पर और एक डिजीज मैं आपको बताऊंगा, दैट इज इफ दीज आर द लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, अगर ये यहां पर दस गए, फॉर एग्जाम्पल दिस लार्ज इंटेस्टाइन विल डिसेंड इनटू दिस इंग्विनल कैनाल, और इस वाले डिजीज को हम पता है क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इंग्विनल हर्निया। इसको हम कहते हैं इंग्विनल हर्निया। So we have up to this point we have two diseases जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमें समझना है। क्या, इंग्विनल हर्निया जब लार्ज इंटेस्टाइन किस में जाएगा, इंग्विनल कैनाल में जाएगा। ठीक है, समझ में आया आपको बात। एक तो हमने क्रिप्टोऑर्किडिज्म पढ़ा, दूसरा इंग्विनल हर्निया पढ़ा। नाउ हम इस टेस्टिस को हम नीचे अब लाएंगे। ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूं। So we studied this inguinal canal,
नाउ दिस टेस्टिस, इसको हम रब करेंगे क्योंकि अब हम इस टेस्टिस को स्क्रोटम में ले जाएंगे। ठीक है, तो अब आपके लिए और एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन पे क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए कि ऐसा क्या होता है कि ये वाला टेस्टिस अपनी जगह पर रहता है, ये वाला टेस्टिस अपनी जगह पर रहता है, ऐसा क्यों नहीं होता है कि ये इसको फाड़ के बाहर जाएगा, या ये वाले एक ही साइड रहेंगे और ये वाला हिस्सा ऐसा ही रहेगा, या ये वाला ऐसा ऐसा ही रहेगा। ठीक है, ऐसा क्या होता है, इसका क्या मैकेनिज्म है, वो हमें पढ़ना है। ठीक है, चलो हम देखते हैं। आपको मैं एक बात बताऊंगा, हमारे पास एब्डोमिनल मसल्स होती है। ठीक है, हमारे पास एब्डोमिनल मसल्स होती है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द एब्डोमेन, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द एब्डोमिनल मसल, दिस इज द एब्डोमिनल मसल, this is the abdominal muscle, this is the abdominal muscle. याद रखिएगा, abdominal muscles are voluntary in action, that is कि ये तब काम करेंगे जब हम इन्हें करवाना चाहे। ठीक है ना, समझ में आ रही है आपको बात? हमने क्या क्या पढ़ा? हमने तो एक क्रिप्टोऑर्किडिज्म पढ़ा, दूसरा इंग्विनल कैनाल पढ़ा, ज्यादा तो हमने कुछ पढ़ा नहीं। अब मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्या होता है कि these testes regulate the temperature, कैसे ये रेगुलेट करेंगे। ठीक है, ये जो मसल्स है ये कैसे इनको हेल्प करेंगे। ठीक है, हमारे पास ये जो टेस्टिस होते हैं, इफ दिस इज द एब्डोमिनल मसल, यहां से मसल्स आएगी और सबसे पहले जो मसल है वी हैव द we have here the dartos muscle, we have here the dartos muscle। सबसे पहली मसल जो होती है we have dartos muscle। now another muscular layer or the muscle that is present in the testes is the external spermatic fascia। this is the another muscle, we can write it as external spermatic fascia। another muscular layer is the cremaster layer। another muscular layer is the cremaster layer, cremaster layer, cremaster layer। आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आपको इनके फंक्शंस पता होने चाहिए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वी हैव दैट इज द डार्टोस मसल एंड दिस क्रीमास्टर मसल। क्रीमास्टर क्या करता है? जैसे डार्टोस हेल्प्स अस इन द रेगुलेशन ऑफ द टेम्परेचर, इसी तरीके से ये जो क्रीमास्टर है ये एलिवेशन ऑफ टेस्टिस में मदद करता है। एलिवेशन, सर इसका क्या मतलब है? ये जो आप बता रहे हो एलिवेशन, ये क्या, किस चीज का एलिवेट हमें करना है? देखो मैं यहाँ पर आपको एक चीज समझाऊंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, इफ द एब्डोमिनल टेम्परेचर इज हाई, अगर एब्डोमेन का टेम्परेचर हाई है, यहां पर हम लिखेंगे इफ द एब्डोमिनल टेम्परेचर इज हाई, अगर एब्डोमेन का टेम्परेचर हाई है तो ये जो क्रीमास्टर मसल्स है ये टेस्टिस को एलिवेट नहीं करते हैं। ठीक है, ये टेस्टिस को नीचे रखते हैं। समझ में आ रही है बात? अब एब्डोमिनल टेम्परेचर होगा लो, इफ द एब्डोमिनल टेम्परेचर इज लो, ये टेस्टिस को एलिवेट करते। कौन सी मसल? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग मसल helps in the elevation of the testes। ठीक है, तो cremaster muscle is the correct answer। Then we have another muscle that is the
internal spermatic fascia, internal spermatic fascia। अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि हमारे पास जो ये टेस्टिस है ये ऐसे ही नहीं एक जगह पर है, ये ऐसे नहीं है कि खुद ही ये एलिवेट हो जाएगा और जब चाहे नीचे रहेगा, नहीं, इसके पास एक प्रॉपर मैकेनिज्म है, इसके पास एक प्रॉपर फंक्शनिंग है, इसके पास जो मसल्स है दैट हेल्प्स अस इन द रेगुलेशन ऑफ द टेम्परेचर एंड द एलिवेशन ऑफ द टेस्टिस इज वेल। सो हमारे पास क्या क्या मसल्स है जो हमने देखी। सबसे पहले हमारे पास वी हैव द डार्टोस मसल दैट हेल्प्स अस इन द टेम्परेचर रेगुलेशन एंड अनदर वन दैट इज द क्रीमास्टर मसल दैट हेल्प्स अस इन द एलिवेशन ऑफ द टेस्टिस। सर फिर से हमें समझाओ। देखो मैं आपको एक चीज बताऊंगा, एट द टाइम ऑफ द हाई टेम्परेचर, ठीक है, जब हाई टेम्परेचर होगा एब्डोमिनल कैविटी भी हाई ही होगी, उसका टेम्परेचर भी हाई ही होगा, होगा ना हाई। अगर हाई होगा हमारे जो टेस्टिस है उनको कितना टेम्परेचर चाहिए, बिलो द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। सो दैट मीन्स उस टाइम ये जो टेस्टिस है हमें बॉडी के नीचे रखने। समझ में आ रही है बात, थोड़ा नीचे रखने। अगर सर्दी होगी दैट मीन्स कि एब्डोमिनल जो टेम्परेचर है वो लो होगा, लेकिन हमारे टेस्टिस को उतना टेम्परेचर चाहिए जो ऑप्टिमम होगा, तो उस दौरान हम जो टेस्टिस होगा वो एलिवेट हम करेंगे। दैट इज बाय द हेल्प ऑफ दीज क्रीमास्टर मसल्स एंड द डार्टोस मसल्स। ये आपको समझ में आ रही है ये बात। देखो अब मैं आपको समझाऊंगा कि ये जो निमोनिक्स हम कैसे इनको हम याद रखेंगे। ये आपको डिफिकल्ट लगता होगा। देखो डार्टोस मसल, एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया, इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया एंड द क्रीमास्टर मसल, इसके लिए मैं आपको एक निमोनिक्स दूंगा जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो द मसल्स वी हैव, हमारे पास निमोनिक्स ये है, सम डेम Englishman called it testes। एक और बात आपको यहां पर याद रखनी है कि इसके पास कुछ फाइबर्स भी होते हैं जिसकी वजह से ये टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी के साथ जुड़ा रहता है। निबर्निकुलम बेस में होता है, वो उतना हमें नहीं पढ़ना। देखो सम डेम इंग्लिशमैन कॉल्ड इट टेस्टिस। सबसे पहले वी हैव द दिस निमोनिक्स एंड ये आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वी हैव स्किन और द स्क्रोटम, ठीक है, ऊपर वाली लेयर है। देन डी का मतलब है डार्टोस मसल। डार्टोस मसल मेरे साथ आपको यहीं पे लर्न होना चाहिए। डार्टोस मसल का क्या काम है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डार्टोस मसल? इट हेल्प्स अस इन टेम्परेचर रेगुलेशन। इंग्लिशमैन एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया, ठीक है। देन सी से क्या आएगा, क्रीमास्टर मसल। क्रीमास्टर मसल, क्रीमास्टर मसल किसके काम आता है माय डियर? Cremaster muscle helps us in the elevation of the testes when required, ठीक है। Then internal spermatic fascia, ठीक है, and at the end we have the testes. So this is the mnemonics that will help you people in the learning or in the memorizing this the muscles of the heart, the muscles of the testes, ठीक है। हार्ट की तरफ में चला गया। सो दिस वाज all about the muscles that are present in the testes and that helps us in the regulation of the temperature. Regulation क्यों जरूरी है टेम्परेचर की? बिकॉज स्पर्मेटोजेनेसिस तो करना है ना। स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए हमारे पास ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है बिलो द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द मसल्स ऑफ द testes and we studied the diseases as well। और मैंने आपको ये भी बोला कि
हमारे पास ये जो टेस्टिस इनटू द स्क्रोटम है, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी में है, ये क्यों है, ठीक है। दैट वाज all in today's lecture. Hope you have learned something and you have understood everything from this lecture. Thank you very much. Thank you for watching.